Yeah, today we'll discuss about the NCERT exemplar questions of molecular basis of inheritance. Now, in a DNA strand, the nucleotides are linked together by. जब हमने पहले आपको पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, तो आंसर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के साथ जो है. देन अ न्यूक्लियोसाइड विच डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो आंसर इज फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड होता है बेस प्लस शुगर और न्यूक्लियोटाइड होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट. देन बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर्स कॉल्ड. डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे, राइबोज जो है वो 5 रिंगड स्ट्रक्चर है, तो इट इज पेंटोजेस. Then the fact that a purine base always pair through hydrogen bonds with a pyrimidine base in the DNA double helix leads to anti-parallel nature, the semi-conservative nature, uniform width throughout the DNA and uniform length in all DNA. Answer is uniform width, क्योंकि एक प्यूरिन और पायरमिडीन के बीच में ही हो सकता है. पायरमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग होता है, प्यूरिन डबल रिंग होता है, तो 3 रिंग ही एक हेलिक्स के अंदर एडजस्ट हो पाते हैं. The net electric charge on DNA and histone is both positive, negative, and negative and positive and zero. So answer is the electric charge on DNA is negative because the presence of negatively charged phosphate, and on histone it is positive because the presence of protein. The promoter site and terminator site for transcription are located at answer is this B, 5 prime upstream end and 3 prime downstream end respectively of the transcription unit. So which of the following statements is the most appropriate for sickle cell anemia? That it cannot be treated with iron supplements, it's a molecular disease, it confers resistance to acquiring malaria and all of the above. ये बिल्कुल करेक्ट है, डी इसका, क्योंकि जो सिकल सेल अनीमिया है ये अनीमिया है तो ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंसी है, तो आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें. बट इसमें अनीमिया जो है ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें जो सर्कुलर आरबीसी ना होके वो सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाता है और मलेरियल पैरासाइट उसमें सफोकेट होके मर जाता है. इसलिए द पीपल हु आर सफरिंग विद सिकल सेल अनीमिया दे कैन नॉट बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG? AUG हमें पता मिथ्योनाइन को भी कोड करता है और इनिशिएशन कोडोन भी है, तो it codes for methionine only. It's an initiation codon, codes for methionine in prokaryote, eukaryotes, and all of the above. Answer is all of the above. The genetic material could be protein, carbohydrates, DNA, RNA. So the first genetic material की जब बात आ रही है तो that was RNA, and ideal genetic material is DNA. So with regard to mature mRNA in eukaryotes, exons and introns do not appear in the mature RNA, and exons appear but introns do not appear in the mature RNA. और यही आपको पता है क्योंकि exons आएंगे, introns splice out हो जाते हैं. Then the human chromosome with the highest and least number of genes in them are C, that is chromosome number 1 जो है उसमें highest number of genes है, and that is 2968, और क्रोमोसोम Y जो है उसमें लीस्ट नंबर है 231. Who amongst the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA? तो ये किसने बताया था कि हेलिक्स मॉडल जो है इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं? दैट इज मेसेल्सन एंड स्टेल, क्योंकि रोजरलैंड, फ्रैंकलिन, विल्किंस इन दोनों ने और चारगाफ ने रूल बताया था कि A/T और G रेशो C इज इक्वल टू 1. सो अकेला मेसेल्सन और स्टाल था जिसने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन के बारे में बताया था. Then DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by 3 prime 5 prime phosphodiester bond. To prevent polymerization of nucleotides, which of the following modifications would you choose? तो आप बताएं इसमें कौन सा. क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो डीएनए है ये एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जो कि लिंक्ड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप में. सो इनकी पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए किस चीज़ की, किस तरह की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डीऑक्सीराइबोज है उसके 3 प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिमूव करना पड़ेगा. Then discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand.
बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है, क्यों एक एक डिसकंटिन्यूड सिंथेसिस, इसलिए कि वो हमेशा जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है वो डीएनए पॉलीमरेज जो बनाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज क्या है? इनिशिएशन तो नहीं करता, वो तो सिग्मा फैक्टर करता है, इलोंगेशन करता है. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ. सो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे. Which of the following statement is correct about the role of regulatory proteins in transcription in prokaryotes? कि इसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में जब आप जीन एक्सप्रेशन की बात करते हो, रेगुलेटरी जीन्स की बात करते हो, तो रेगुलेटरी जीन जो आए हैं स्टार्टिंग में है ना ऑपरेंड में, वो क्या होता है? इट एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर एज वेल एज रिप्रेसर. तो बिकॉज इसी ने ही इसी पे डिपेंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पे बाइंड करेगा कि नहीं करेगा. विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड. सो सबसे लास्ट में क्रोमोसोम 1 जो था वो कंप्लीट हुआ था मई 2006 में. Which of the following are the functions of RNA? Functions of RNA क्या है कि it's a carrier of genetic information from DNA to ribosome, ये correct है. It carries amino acids to ribosomes, ये भी ठीक है. It's a constituent component of ribosome rRNA जैसे हम कहते हैं. So all of the above जो है. While analyzing DNA of an organism, a total number of 5,386 nucleotides were found, out of which proportion of different bases are adenine, guanine, cytosine, thymine. Consider the Chargaff rule. मैंने अभी बताया था A/T और G/C जो है ये होता है इसमें. So उस rule it can be concluded that it's a double stranded circular DNA, single stranded RNA, double stranded linear DNA, और नो कंक्लूजन. इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. कैसे कि इन द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म टोटल ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वर फाउंड, आउट ऑफ विच द प्रोपोर्शनल बेसिस जो है 29% एडेनिन है, 17% ग्वानिन है, और 32% जो है, क्योंकि साइटोसिन 32% है, और देन थायमिन 17%. सो कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template. So such a DNA is a cDNA, RNA में complementary DNA. If Messelson and Stahl's experiment is continued for 4 generations in bacteria, तो 4 जनरेशन में रेशो क्या होगी N15-15, और इनकी तो ये आ जाती है 0:1:7. सो थर्ड जनरेशन जो है 60 मिनट है, द फोर्थ जनरेशन जो है वो 80 मिनट बाद होती है, तो उसमें आ जाता है 1:7. देन इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ATG, तो आरएनए में क्या होगा? तो आरएनए में बिकॉज आपको पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा, उस कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा इसका TA, देन उसके बाद CTTAC. ये डीएनए का हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम का. फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको बनानी पड़ेगी, तो आप उसका बना के देखोगे तो वो बनेगा AUG. So then the RNA polymerase holoenzyme transcribes the promoter, structural gene and terminator, promoter and terminator. And yes, RNA polymerase holoenzyme जो है वो सिर्फ structural gene के लिए होता है. If the base sequence of codon in mRNA is 5 prime to 3 prime AUG, sequence of tRNA means उसके एंटी कोडोन पे क्या होना चाहिए? तो उसके एंटी कोडोन पे होगा इधर से, अगर आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टडी करना है तो वो होगा CAU. So B is correct. The amino acid attaches to the tRNA at its कौन से एंड पे होता है? 3 प्राइम एंड पे. B is the answer. To initiate translation, mRNA first binds to the smaller subunit of ribosome. In E. coli, lac operon gets switched on when lactose is present and it binds to repressor. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग? हमें पता है कि डी जो हिस्टोन्स होते हैं वो प्रोटीन रिच आर्जिनिन और लाइसिन
अमीनो एसिड के बने होते हैं। सो हिस्टोन्स फ्रॉम ऑक्टामर ऑन विच डीएनए इज रैप्ड एंड फॉर्म न्यूक्लियोसाइम, एंड वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। हीट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमेटिन होता है, बट डिफरेंसेस में यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है और ये डेंसली पैक्ड है। इसमें जब आप स्टेन यूज करते हैं, यूक्रोमेटिन में लाइट स्टेन आता है, हीट्रोक्रोमेटिन में डार्क स्टेन आता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है हीट्रोक्रोमेटिन। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई is a DNA dependent DNA polymerase and also has the ability to proofread the DNA strand being synthesized. So discuss the dual polymerase. DNA polymerase जो है ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, प्रूफ रीडिंग मतलब डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करती है। Then what is the cause of discontinuous synthesis of DNA on one of the parental strand? What happens to these short stretches of the synthesized DNA? So जो DNA dependent DNA polymerase होता है वो एक ही डायरेक्शन में, मीन जो न्यूली सिंथेसाइज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही उसकी न्यू सेगमेंट बनता है, न्यू कॉपी बनती है, एंड रेप्लिकेशन वो कंटिन्यूस होती है। वाइल जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसमें डिसकंटिन्यूस होते हैं और उसके जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्वाइन होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम से। सो अगर हमें एक कोई सीक्वेंस देते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें बनाना है तो आप सिंपली 5 प्राइम टी टी ए सी जी टी सी जी ए टी ए टी सी सी करके, और mRNA अगर आपने उसका बताना है तो mRNA में आ जाएगा ये AAU और देन GC देन AC, मीन्स आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना है। व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी इट? पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा याद रखो, उसका मीनिंग होता है वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, और वेरिएशंस जो भी मेनली आती है वो म्यूटेशन की वजह से आती हैं। कहीं जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन आ जाती है ट्रेडिशनली, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस occurs in human population with a frequency greater than 0.01। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम किसी भी दो ह्यूमन बीइंग के एलील समझते हो ना, जैसे हम हाइट में पढ़ते थे, हाइट के लिए होता है कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी। तो ये जो टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी एलील्स है, अगर इनके बीच में जो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन 0.01 से ज्यादा हो जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मोस्टली क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से होता है। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in population at high frequency, बहुत तेजी से अगर नजर आती है कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन, उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और वो हम यूज कर सकते हैं टू इन फोरेंसिक एप्लीकेशंस। Then based on your understanding of genetic code, explain the formation of any abnormal hemoglobin molecule. What are the known consequences of such a change? So the defect is caused by substitution. आपने देखा सिकल सेल अनीमिया में अगर हम देखते हैं तो सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकनवेव डिस्क से सिकल सेल का कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें जो 6th पोजीशन पे जो उसका प्रोटीन है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उसके 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। अगर हम उसका 6th पोजीशन का कोडोन देखते हैं, गैग से गुग हो जाता है, ए यू में चेंज हो जाता है। Sometimes cattle or even human beings give birth to their young ones that are having extremely different sets of organs like limbs, position, etc. So उसका क्या रीजन हो सकता है? So there is disturbance in coordinated regulation of expression of sets of genes उनमें। then जब organ development होता है तो gene expression में changes आ जाती है। In a nucleus, the number of ribonucleoside triphosphate is 10 times the number of deoxyribose. But only deoxyribonucleotides are added during the DNA replication because DNA polymerase बहुत specific होता है, वो सिर्फ deoxyribonucleoside triphosphate को ही ऐड करवाता है, आरएनए को नहीं। Name a few enzymes in the DNA replication other than DNA polymerase और ligase। हेलिकेज है जो हेलिक्स को ओपन करता है, टोपोआइसोमरेज होती है जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर बनाते हैं, देन टीलोमरेज भी होता है जो synthesize the DNA of telomeric end of the chromosome. So name any 3 viruses which have RNA as the genetic material. TMV है tobacco mosaic virus, HIV है human immunodeficiency virus and QB bacteriophage। तो ये अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो है हमारा कि डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।